Okay, yes, today is a practical session. Okay, in the last Wednesday, okay, last Wednesday we have made some tables. Okay, today we have to perform the queries on that table. Okay, we have already created the table. Okay, attendance was very less at that day. Okay, because of your form filling, I think library form filling. Okay, due to that reason students were not attending the lectures. Okay, so in the last lecture we have created practical. Okay, lecture means practical. In the last practical we have created the table, worker table. We have created in that worker table worker id, first name, last name, salary, joining date and department columns are there. Second, bonus table we have created. In the bonus table, worker reference id column is there, bonus date is there and bonus amount. तो worker reference id is a foreign key. Okay, वो क्या है, foreign key है. Okay, कहाँ से आएगा, in the worker id table में से. Okay, worker id is the primary key in its own table. worker table में primary key था and in the bonus table में worker reference id क्या था, foreign key था. ठीक है, we have created this table. foreign keys से हमने ये क्रिएट किया था. ओके, वी हैव क्रिएटेड द फॉरेन की इन द बोनस टेबल. वर्कर आईडी रेफरेंस आईडी को प्राइमरी की असाइन किया था इन दिस टू दिस कॉलम को. ओके, तो लेट्स सी हमारा कौन सा डेटाबेस हमने यूज किया था, याद है किसी को? एनीवन हैज रिमेंबर व्हिच डेटाबेस वी हैव क्रिएटेड? एक मिनट, शो, सॉरी, रूट पासवर्ड आई हैव टू एंटर ना. ओके, okay, now show databases. किसी को याद है which database we have used that day? चेक कर लेते हम लोग, मुझे भी याद नहीं अभी. चेक शो डेटाबेस. वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल. ओके, हम लोग वही टेबल पे काम करेंगे. यूज एसएनजीसी. use, I think SNGC is only one is there, no? We have created that one. Let's check. Use SNGC. Okay, show tables. I'm writing the query show tables. Tables. Okay, yes, see, okay, we have already created bonus and worker table. ठीक है, हमने bonus and worker table last उसमें create किया था. Let's check the data. I think data also we have entered ना. Select star from worker का data display करवाते हैं हम लोग पहले. Okay, select star from worker. Okay, okay, and select star from bonus. Select. We have already created these. Okay, in the last lecture हमने create किया था, तो again and again हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सेम थिंग में. ओके, टुडे वी हैव टू परफॉर्म क्वेरीज ऑन दिस टेबल्स. ओके, हमको ये इस पे क्वेरी परफॉर्म करना है ये टेबल्स पे. तो जस्ट हम लोग टेबल्स ओपन करके रखते हैं. Select start from bonus. ओके, BO and ES. ये फॉरेन की यूज करके, प्राइमरी की यूज करके वी हैव क्रिएटेड द टेबल्स. ओके, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया हुआ था. यस, नाउ क्वेरी टुडे वी विल परफॉर्म. व्हिच आर द क्वेरीज? सी. ओके, यस, एंड स्टूडेंट यू हैव टू राइट दिस क्वेरी. ओके, एज अ प्रैक्टिकल आपको लिखना है ये क्वेरीज, तो अभी नोट डाउन करके रखो. ओके, ठीक है, चलो. Two tables we have created. Title table is remaining, that we will cover create. Okay, अगर जरूर पड़े तो हम लोग क्रिएट करेंगे. अभी हमने 2 tables क्रिएट किया है. ओके, फॉरेन की प्राइमरी की से हमको करना है उसमें. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेरी we have already done in the last lecture. What is the first query? Read. Write an SQL query to fetch first name from the worker table using the alias name as worker name. Okay, what is the query? Query क्या है? Write an SQL query to fetch first name. To fetch, what is the meaning of fetch? मतलब क्या रिटर्न करवाना है, रिट्राइव करवाना है, डिस्प्ले करवाना. ओके, टू फैच फर्स्ट नेम. ओके, फ्रॉम द वर्कर टेबल में से हमको फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना है यूजिंग द अलाइस नेम एज वर्कर नेम. मतलब ऊपर क्या डिस्प्ले हो, क्या आना चाहिए? वर्कर नेम. वर्कर नेम तो डिस्प्ले, फर्स्ट नेम तो डिस्प्ले होगा. ओके, बट ऊपर हेडिंग क्या आना चाहिए टेबल में? वर्कर नेम. हेडिंग शुड बी डिस्प्ले. ओके, रिटर्न क्या करवाना है? फर्स्ट नेम. ओके, फर्स्ट नेम वी हैव टू डिस्प्ले. तो फर्स्ट नेम हमारा कॉलम है, तो वी हैव टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम वर्कर टेबल में से. ओके, बट ऊपर जो आउटपुट आएगा ना, उसके ऊपर हेडिंग क्या लिख के आना चाहिए? वर्कर नेम. ओके, तो उसके लिए विच क्वेरी वी हैव टू राइट? क्या क्वेरी लिखना पड़ेगा, चलो बताओ. ऑल आर द कॉमन क्वेरीज. वी आर रिवाइजिंग ऑल द क्वेरीज. ओके, यू शुड डिसाइड
क्वेरी क्या हमको लिखना है। ओके ऑलरेडी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, एंड और वेयर अपडेट मॉडिफाई, जो भी लाइक वगैरह जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, दैट वी हैव टू अप्लाई टुडे। ओके बट वो आपको डिसाइड करना है कि कभी कौन सा क्वेरी कैसे लिखना है। ओके तो नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट, क्या लिखना पड़ेगा मुझे फॉर दिस क्वेरी के लिए। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल, ये तो हमको पता है, इसको तो हम लोग लिख लेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल, आगे क्या लिखा है, यूजिंग द अलाइस नेम वर्कर नेम, तो ऊपर क्या आना चाहिए, वर्कर नेम आना चाहिए डिस्प्ले। ओके तो क्या क्वेरी लिखेंगे हम लोग, कौन बताएगा मुझे। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेरी इन द लास्ट लेक्चर, याद है किसी को। यस स्टूडेंट्स, चलो बी एक्टिव इन द लेक्चर। यस चलो बताओ। आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स। चलो आप बताओगे, मैं लिखूंगी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर उसमें ही बोला था ऑलरेडी, आई हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स। ओके हम लोग वन टाइप ऑफ रिवीजन ही समझ लो उसको। यस वन आंसर इज दैट select f name as worker name from worker। yes okay good कोहिनूर। ओके इतना ही तो लिखना है। ओके what is the query, read again, what is the query, select sorry write SQL query to fetch first name from the worker table। ओके बट ऊपर नेम क्या आना चाहिए, वर्कर नेम आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए, वर्कर नेम should be display। ओके तो what is the query, select f name, इसको मैं कॉपी कर दूं। ओके चलो नहीं हो रहा है वो, कोई बात नहीं, वी विल राइट, जाने दो। ये सिलेक्ट, ओके सिलेक्ट क्या चाहिए हमको, एफ नेम। ओके एफ नेम, सिलेक्ट एफ नेम, सिलेक्ट एफ नेम। ओके कैसे सिलेक्ट करना है, एज क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ऊपर वर्कर नेम। ओके तो WORKER वर्कर नेम from table name, what is the table name, worker, WORKER। ओके आ गया। सिलेक्ट एफ नेम, तो एफ नेम जो भी है, एफ नेम कोहिनूर पूजा इरशाद, ठीक है, कोहिनूर डिस्प्ले हो रहा है एज वर्क नेम, ऊपर क्या लिख के आया, वर्क नेम। ओके ऊपर क्या लिख के आना चाहिए था, वर्क नेम फ्रॉम वर्कर, वर्कर के टेबल में से। ओके यस okay now what is the next query, read the next query। yes write an SQL query to fetch the first name from the worker table in uppercase। चलो बताओ मुझे, write an SQL query to fetch first name from the worker table में से first name हमको fetch करवाना है। ओके बट अपर केस में करवाना है, तो क्या क्वेरी लिखूंगी मैं। यस आज आप लोग ही बोलोगे स्टूडेंट्स, चलो बताओ। अपर केस में मुझे प्रिंट करवाना है फर्स्ट नेम, तो व्हाट विल बी द क्वेरी। यस क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, एवरीवन कैन सी द क्वेश्चन क्वेरीज, यस और नो, यस और नो। विजिबल है क्वेरी, क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, क्वेश्चन नंबर 2, एवरीवन कैन सी द क्वेश्चन। यस ओके ओके नाउ टेल मी द आंसर, क्या क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल इन अपर केस, अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखूंगी, क्या लिखना पड़ेगा मुझे। यस ट्राई करो, रॉन्ग राइट चलेगा, नो इश्यू, रॉन्ग होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड गिव द आंसर। चलो यस सरफराज, सिलेक्ट अपर एस अपर केस कस्टम नेम फ्रॉम कस्टमर, राइट है कि रॉन्ग है, चलो इसको ट्राई करते हैं, सरफराज ने बोला है हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, वी विल ट्राई, रॉन्ग होगा तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे, बट यू शुड ट्राई ना। हाँ
ट्राई करोगे तो समझ में आएगा कि आपको जो समझ रहे हो वो रॉन्ग है कि सिलेक्ट अपर एस जो सरफराज ने बोला है दैट आई एम राइटिंग ओके अपर केस कस्टमर नेम नहीं है एफ नेम है वी हैव द एफ नेम कॉलम ओके तो एफ नेम यस स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं एफ नेम फ्रॉम वर्कर टेबल अवर टेबल नेम वर्कर तो ये राइट है कि रॉन्ग है चलो इसको रन करके देखते हैं ओके तो some mistake error is there what is the error you have an error in your SQL syntax check the manual that corresponding to मतलब error है f name कुछ तो error है यहाँ पे ठीक है what is the error now उसको कौन करेक्ट करेगा yes सरफराज गुड ट्राई किया आपने गुड yes again सरफराज ने आंसर दिया है select upper customer name as upper name yes now this is correct इरशाद select upper f name from worker order by हाँ order by नहीं किया तो भी चलेगा select upper f name लिखोगे तो भी चलेगा yes Irshad good surplus now it is correct okay chalo select upper is a function to convert the string into the uppercase इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है उन्होंने f name बोला है तो we have to write here f name okay f name okay from कौन सा टेबल है from worker WORKER वर्कर ओके आ गया कोहिनूर पूजा इरशाद कैपिटल में आ गया यस वेरी गुड यस इरशाद ओके ऑर्डर बाय अपर एफ नेम अगर आपको ऑर्डर बाय करना है उसको अरेंज करना है तो यू कैन राइट ऑर्डर बाय अदरवाइज उन्होंने यहाँ पे हमको कुछ बोला नहीं है ऑर्डर बाय वगैरह ठीक है यहाँ पे दे ओनली टेल की वर्कर टेबल में वर्कर जो टेबल में एफ नेम है जो अपर केस में आना चाहिए तो हम लोग इतना ही क्वेरी लिखेंगे नाउ क्लियर स्टूडेंट्स okay select upper open the bracket write the column name from table name okay yes ठीक है चलो now next query which is the next query बहुत टाइम लगाते हो आप लोग जल्दी बताओ मुझे आंसर्स okay yes next is write a SQL query to fetch unique values of the department from worker table okay write an SQL query to fetch unique values of department from worker table मतलब वर्कर टेबल जो हमारा है ठीक है उसमें वर्कर टेबल में जो डिपार्टमेंट है वो यूनिक डिस्प्ले होना चाहिए ठीक है आईटी है एचआर है तो एचआर 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए तो ओनली एक टाइम ही मतलब सिंगल रिपीट होना चाहिए ठीक है यूनिक वैल्यूज रिटर्न होना चाहिए ओके राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच यूनिक वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट का यूनिक वैल्यू फेच होना चाहिए फ्रॉम वर्कर टेबल मतलब वर्कर टेबल में अगर डिपार्टमेंट रिपीटेड डिपार्टमेंट है रिपीट हो रहा है डिपार्टमेंट्स तो वो रिपीट वाला डिस्प्ले नहीं करना है सिंगल टाइम रिपीट होना डिस्प्ले होना चाहिए इन अवर टेबल देयर आर 2 टाइम्स ऑफ एचआर द डिपार्टमेंट पे तो ओनली एक ही एचआर डिस्प्ले होना चाहिए आईटी डिस्प्ले होना चाहिए तो वैसे आउटपुट चाहिए तो व्हाट विल बी द क्वेरी यस क्या क्वेरी होगा चलो बताओ यस अगर आंसर नहीं दिया तो मुझे एक एक को लेना पड़ेगा ठीक है आई हैव टू आस्क इंडिविजुअली अगर सामने से आंसर नहीं दिया तो मुझे सबको एक एक करके पूछना पड़ेगा यस वन यस यूनिक वैल्यूज हाँ यूनिक वैल्यूज ठीक है टेबल में से यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करवाना है सरप्लस यस व्हाट विल द क्वेरी राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फेच यूनिक वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर टेबल चलो बताओ जल्दी से यस अनिल व्हाट विल द क्वेरी चलो बताओ मुझे नाउ मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा फिर बोलना पड़ेगा जो क्वेरी देगा बोलेगा उसको ही अटेंडेंस लगाऊंगी देन आई हैव टू स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा रूल्स जो है यस सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर वेरी गुड इरशाद वेरी गुड ओके क्या लिखना है हमको डिस्टिंक्ट क्वेरी लिखना है ओके व्हाई बिकॉज हमको यूनिक वैल्यूज चाहिए क्या डिस्टिंक्ट चाहिए डिपार्टमेंट ओके तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड वी हैव टू यूज ओके डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट कॉलम का नेम जो है वो एंड फ्रॉम वर्कर टेबल नेम सरप्राइज
Yes, alter table person add unique ID. No need to write this, सरफराज. Okay, क्या करना है हमको? यूनिक डिपार्टमेंट वैल्यूज रिटर्न करवाना है, ठीक है. तो हमको टेबल में यूनिक ऐड करने के लिए नहीं बोला है, जस्ट हमको रिटर्न करवाने के लिए बोला है. क्या बोला है? टू फेच. ओके, टू फेच यूनिक वैल्यूज. फेच मतलब क्या? रिटर्न करवाना, डिस्प्ले करवाना. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेच. ओके, तो हमको फेच करवाना है यूनिक वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट के टेबल में से. तो यस, अनिल ने क्वेरी दिया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम वर्कर टेबल. बट अनिल आपने क्या बोला है? ओनली डिपार्टमेंट. तो ऑल डिपार्टमेंट होगा. चलो हम लोग ट्राई करते हैं, जो अनिल ने बोला वो ट्राई करते हैं पहले. सरफराज करेक्ट आंसर. सरफराज का क्वेरी जो है दैट इज करेक्ट. सरफराज नहीं, सॉरी, इरशाद. ओके, इरशाद ने जो क्वेरी बताया है दैट इज करेक्ट वन क्वेरी है. बट पहले हम लोग अनिल का ट्राई करते हैं, ठीक है. अनिल ने जो आंसर दिया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी. डिपार्टमेंट हमारे टेबल में कॉलम का नेम है डिपार्टमेंट, ठीक है. दिस इज आवर वर्कर टेबल. डिपार्टमेंट टेबल है. सिलेक्ट डिपार्टमेंट देन फ्रॉम टेबल नेम. ओके, अनिल ने जो लिखा है दैट क्वेरी आई एम राइटिंग. ओके, तो अनिल का जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा. सिलेक्ट डिपार्टमेंट DEPARTMENT फ्रॉम वर्कर. ओके, अनिल ने वही बोला है ना, ठीक है. चलो, तो क्या हो रहा है अनिल? देखो, IT HR डिपार्टमेंट रिटर्न हो रहा है. बट व्हाट इज अवर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या बोला है हमको कि fetch unique values. ओके, व्हाट इज द क्वेरी? यूनिक वैल्यूज ऑफ द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट का यूनिक वैल्यू मतलब जो रिपीट हो रहा है डिपार्टमेंट, वो डिस्प्ले नहीं करना है हमको. क्या करना है? यूनिक डिस्प्ले करना है, ठीक है. तो फॉर यूनिक के लिए आपने जो क्वेरी बोला, इन दैट क्वेरी वी हैव टू राइट वन कीवर्ड डिस्टिंक्ट. क्या लिखना पड़ेगा हमको? डिस्टिंक्ट कीवर्ड वी हैव टू राइट, क्योंकि हमको क्या बोला है? यूनिक वैल्यू बोला है. Distinct. Okay, now write the column name. Which column name we want to return? डिपार्टमेंट. DEPARTMENT. ओके, उसका यूनिक वैल्यू चाहिए ना डिपार्टमेंट का, तो हमने लिखा है डिस्टिंक्ट. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम नाउ कॉलम नेम, सॉरी टेबल नेम वर्कर. ओके, नाउ सी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों क्वेरीज में वी हैव जस्ट एडेड वन कीवर्ड डिस्टिंक्ट ऐड किया. तो डिफरेंस क्या है कि IT HR जो 2 टाइम्स HR था यहाँ पे वो रिमूव हो गया. तो यूनिक वैल्यूज डिपार्टमेंट का यूनिक वैल्यूज रिपीट हो रहा है. ओके, क्लियर नाउ अनिल? क्लियर? ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है. ओके, चलो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेरी? नेक्स्ट क्वेरी क्या है? वेरी गुड, ट्राई करो, ठीक है. सबको ट्राई करना है. ट्राई करोगे देन यू विल गेट आइडिया कि यस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. चलो, write an SQL query to print the first 3 characters of first name from worker table. Write an SQL query to print the first 3 characters of the first name from worker table. मतलब वर्कर टेबल में जो भी नेम्स है वो नेम्स के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स वी हैव टू डिस्प्ले. व्हाट विल बी द क्वेरी? अरुण नेक्स्ट कौन है? अरुण. यस, अरुण चलो जल्दी से बताओ. यस, नेक्स्ट इज अरुण है ना, अनिल के अरुण. यस, क्या बताना है? क्वेरी बताना है. इसका क्वेरी मुझे आंसर बताओ. राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट दी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम दी वर्कर टेबल. वर्कर टेबल में जो हमारा फर्स्ट नेम है ना, ये कोहिनूर, पूजा, इशाद. ओके, वो हर एक का ओनली फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हमको डिस्प्ले करवाना है. व्हाट विल बी दी क्वेरी? अरुण ट्राई करो. To print the first 3 characters of first name from the worker table. Yes, और कोई भी ट्राई कर सकता है, बट अरुण को आंसर देना ही है. रॉन्ग है तो राइट. ओके, चलो ट्राई करो. रॉन्ग होगा तो चलेगा, बट यू हैव टू ट्राई. यस, अनिल ने दिया है सिलेक्ट सब स्ट्रिंग फर्स्ट नेम 1 2 3 फ्रॉम वर्कर. ओके, चलो अनिल ने आंसर
टाइप करते हैं अनिल का, ठीक है। ओके, अरुण ने बोला है परसेंटेज यूज होगा ना, पूरा क्वेरी बताओ मुझे अरुण, ठीक है। तब तक हम लोग अनिल का ट्राई करते हैं, टाइप होल क्वेरी इन द चैट बॉक्स अरुण। तब तक हम लोग अनिल का जो है क्वेरी वो ट्राई करते हैं। सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग के लिए क्या है? यस इरशाद। सबस्ट्रिंग एफ नेम, ओके एफ नेम। यस इरशाद का भी क्वेरी करेक्ट है इरशाद। एफ नेम 1,3, ओके, फ्रॉम टेबल नेम, ओके, वर्कर WORKER। यस इरशाद वेरी गुड, अनिल गुड, अनिल वेरी गुड, ओके, नितिन फ्रॉम वर्कर, यस, Sarfaraz, yes, okay, this is the correct query. Yes, okay, substring we have to use. Very good students, okay, I want this type of replies. ठीक है, yes, अरुण आपने ट्राई किया, गुड, ओके। तो क्या लिखना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू राइट सिलेक्ट सबस्ट्रिंग, ओके, फर्स्ट नेम 1 से स्टार्ट करके 3 फ्रॉम वर्कर। तो दिस इज द करेक्ट क्वेरी। हमारा क्वेरी क्या था? जो नेम है उसका फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स वी हैव टू रिटर्न, तो वी कैन यूज दिस सबस्ट्रिंग, ओके। हमने ये फंक्शन पढ़ा है, वी हैव लर्न दिस फंक्शन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओके। तो जो भी रिप्लाईज दे रहे, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आई नोट डाउन, आई हैव नोट डाउन ऑल दिस नेम्स, ठीक है। तो प्लीज बी एक्टिव, आई एम ऑब्जर्विंग योर जो भी रिस्पॉन्स है इन द लेक्चर, तो प्लीज एवरी स्टूडेंट्स बी एक्टिव, ओके ओके। चलो, okay, chalo, next query. What is the next query? Write an SQL query to find the position of the alphabet A in the first name column Amitabh from worker table। ठीक है, तो हमारे में उसमें अमिताभ नेम नहीं है, तो हमारे में जो भी नेम है उसमें से हमको जो अल्फाबेट A है ना उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है। ओके, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी to find the position of alphabet A in the first name column Amitabh from worker table। ओके, तो अमिताभ की जगह पे हम लोग और कोई भी नेम ले देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई और कैरेक्टर भी वी विल फाइंड, बट व्हाट विल बी द क्वेरी? यस, हु इज नेक्स्ट? पूजा, यस पूजा, ट्राई क्वेरी ट्राई करो ये, चलो बताओ जो भी आपको आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। अदर स्टूडेंट्स आल्सो ट्राई। Again, I am reading the query. Write an SQL query to find the position of the alphabet A in the first name column Amitabh from worker table। Okay, आपको अगर टेबल चाहिए तो इसी, ये हमारा टेबल है। ओके, क्या बोला है उन्होंने? क्या बोला है? राइट SQL query to find the position of alphabet A। ओके, मतलब जो भी नेम्स है, ठीक है, उसमें ए हमको ए का पोजीशन वी हैव टू फाइंड इन दी फर्स्ट नेम कॉलम अमिताभ फ्रॉम द वर्कर टेबल। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे कोहिनूर है, तो कोहिनूर में ए कौन से पोजीशन पे, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, व्हाट विल बी द क्वेरी? यस पूजा, ट्राई करो, चलो अदर स्टूडेंट्स, चलो जो जैसे होगा वैसे, ऐसे नहीं कि करेक्ट ही होना चाहिए, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। Okay, select INCR first name you binary A। ठीक है, ट्राई करते हैं सरफराज, आप श्योर नहीं हो बट कोई बात नहीं, यू हैव ट्राई, गुड। चलो, सिलेक्ट सिलेक्ट INSTR। यस इरशाद, इरशाद ने भी क्वेरी लिखा है, दोनों का सेम ही क्वेरी है, बट उसने वेर एफ नेम इक्वल्स टू पूजा। वेरी गुड इरशाद, गुड। ओके, सिलेक्ट
INSTR we have the column F name, तो हम लोग F name लिखेंगे. ओके, F name बाइनरी A. ओके, फ्रॉम यस कोहिनूर ने भी दिया है, कोहिनूर का भी हम लोग ट्राई करेंगे. कोहिनूर, ओके गुड, वी विल ट्राई कोहिनूर. पहले इसका हम लोग कर लेते हैं. ओके, फ्रॉम सॉरी फ्रॉम टेबल नेम वर्कर WORKER वर्कर where F name where F name where F name हमको इक्वल्स टू जो भी दिया है. ठीक है, उन्होंने चलो पूजा ले लेते, कोई बात नहीं. जो भी नेम हमको लेना, उन्होंने अमिताभ बोला है, हमारे टेबल में है नहीं, हमारे टेबल में जो भी नेम है वो हम लोग दे रहे हैं. ओके ओके क्लियर. तो क्या क्वेरी लिखा, वी हैव रिटन द क्वेरी लाइक सिलेक्ट INSTR. ओके, F नेम बाइनरी A, मतलब फर्स्ट नेम में A का पोजीशन को टेबल में से फाइंड होगा. वेयर F नेम इक्वल्स टू पूजा, जिसका नेम पूजा है, जिसका नेम पूजा है उसमें A कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5. वेरी गुड. ओके गुड. तो जिसने भी आंसर दिया है सरफराज, इरशाद. ओके गुड. नाउ हम लोग और एक यस अनिल, सिलेक्ट INSTR फर्स्ट नेम बाइनरी A. ओके, ये भी करेक्ट है, बट आगे हमको क्या बोला है कि जिसका नेम अमिताभ है या तो कोई भी पर्टिकुलर नेम के लिए, तो फॉर पर्टिकुलर नेम वी हैव टू राइट F नेम वेयर कंडीशन वेयर F नेम इक्वल्स टू पूजा. ओके, नाउ कोहिनूर ने दिया है दैट वी हैव ट्राइड. यस सरफराज आपका भी राइट है, अनिल का भी राइट है, इरशाद का भी राइट है. ओके, कोहिनूर का हम लोग ट्राई करते हैं. कोहिनूर चलो, सिलेक्ट position. Okay, this is A in F name. Sorry, F name as worker. Okay, WORKER worker. Okay, F name unknown column F name. Okay, yes, Habiba, this is correct. Okay, select F name binary A from worker name. Yes, this is correct. हमने वो run किया, this is correct. Okay, yes. Yes, Kohinoor, you have written the query select position A in F name as worker. Okay, but आगे we have to write ना, कुछ आगे लिखना पड़ेगा ना कि from table name. Okay, yes, Kohinoor, yes or no? Select position A in F name as worker. आगे this is a half query ना, यहाँ पे टेबल का नेम from नहीं आ रहा है. What will be the correct query? Yes, Kohinoor. Okay, correct query is this one. ठीक है, select INSTR F name binary ये search करो from the worker table where F name equals to पूजा. Okay, so this is the correct one. Yes, चलो. Yes, कोहिनूर इसको correct करो. कोई बात नहीं कोहिनूर, चलो no issue. आपका नेट इशू है, कोई बात नहीं, चलो. Okay, next query. What is the next query? Good. Try करो students, very good. चलो. Okay, yes. Next query. Okay, write a SQL query to print the first name from worker table after removing
व्हाइट स्पेस फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो ये स्पेस रिमूव करने के लिए आर ट्रिम, ओके, राइट ट्रिम करके ये है स्पेस रिमूव करने के लिए वी हैव दी कौन सा आपको यूज करना है फंक्शन आर ट्रिम, राइट ट्रिम। लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करने के लिए वी हैव दी एफ ट्रिम, ओके। ये स्टूडेंट रिजॉइन, यस अरुण, ओके। आर ट्रिम राइट साइड का स्पेस रिमूव करने के लिए, लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करने के लिए लेफ्ट ट्रिम, ओके ओके, ठीक है। ये इतना कुछ है नहीं, हम लोग इसको नहीं करते। चलो नेक्स्ट, ओके, ये दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड का स्पेसिस का है। चलो नाउ दिस इज अ क्वेरी, write an SQL query, query number 8, okay, write an SQL query that fetches the unique values of department from the worker table and print its length, okay। चलो ये बताओ, fetches the unique value of department that we know, वो हमको पता है, and print its length, उसका लेंथ भी हमको प्रिंट करना है, दोनों चीज प्रिंट करना है, ओके, उसका लेंथ भी प्रिंट करना है।